Good evening, Namaskar, Jai Hind. A warm welcome to all on today's episode of Doctor's Desk. I'm your host Shweta Rana and you're watching us on N9 Live. Right now, we are living in the middle of a pandemic, the COVID-19 pandemic. And these are very difficult times for all of us and entire humanity. Right now, the discussions on are about the third wave, which is being predicted to affect children. And everyone is very worried about what the third wave holds for us, as our children are very precious to each and every one of us. To discuss on the impact of COVID-19 pandemic on children, I have along with me Dr. Alpana Shukla. Namaskar, ma'am. A warm welcome to you on today's platform. Namaskar. Dr. Alpana Shukla is an M.B.B.S. M.D Pediatrics from JPP Medical College. She worked as a DIO Chhindwara and received an award for excellent work. Now into private pediatric consultant since last 27 years at Chhindwara. She's a counselor for breastfeeding, adolescent health, and is a member of ECMS and a fellow of the infectious diseases. She is the president of the Indian Association of Pediatrics Chhindwara, president of the South Zone Mission Pink Health, and has received awards from Indian Association of Pediatrics and Indian Medical Association Chhindwara at state and national levels. She has published articles and papers in pediatrics and is an executive member of the state IAP. She is also a member of standing national IMA committees. Ma'am, thank you so much for taking out your precious time and joining in with us today to answer Thank you. questions that are grappling everyone right now about the COVID-19 pandemic. Ma'am, my first question to you is that the talk right now is that the third wave of the pandemic will affect children. Ma'am, these are very trying times. Ma'am, how do we safe keep our children in these trying times? Yes, Shweta, a very good question in the current scenario of today with increasing COVID cases round the corner. Just to say a couple of sentences on the history of this disease, it started from 31st December 2019, and then it encompassed the whole of 2020 with COVID declared as pandemic by WHO on 30th of January 2020. The Ji, graph ma'am. was seen gradually rising and falling with curfew and lockdowns in the different states in sequence by sequence, and the whole country was nearly in a standstill as far as the economy, education, as well as the development is concerned. And September 2020 was the peak of this first wave, and that was the maximum was 83,809 cases in a 24-hour period. Then, about only less than 1% children were affected by this disease in the first wave. The wave gradually dipped and again started to rise. And again, in the months of March and April and May, the second wave started showing its peak. It was very bad, it was a big hazard, and it was a real tsunami for the country. The highest peak was on 6th of May with cases of 4,14,188 in a span of 24 hours. And this time, in the second wave, the middle aged people were seen to be affected more. That is, the people from the age of 20 years to the age of 50 years, 50 to 60 years. 41% of the people of this age group were affected by this disease this time. A total of about 70% of the cases were from people from the age of 20 to 60. So, in the first wave, we saw that most of the time the elderlies were affected. But in the second wave, people from 20 years to 50 to 60 years were more affected. In fact, they were showing more than 70% of the cases. But now, this time, the number of cases in the children gradually increased. Initially, it was said about 10%, but then gradually it was seen when the peak came, about 14 to 20% cases have also been reported from a few corners where children were involved. Now, as expected in any pandemic, number of waves come up and then come down. At times, the second wave is lower than the first, the third wave is lower than the second, and at times they are higher. It depends.
So, as expected, a third wave is anticipated by the experts and the epidemiologists about September or October. It is expected it may come back in about 2 to 3 months from now. And also, as we said, it is anticipated by the experts that children will be affected in very more numbers this time. So, first of all, the question is the reasons why the children are going to be affected more this time. Yes. The first cause is that most of the children, most of the people from the elderly group, senior citizens, as well as the middle aged, they have been vaccinated. In the first Yes. wave, the elderly people were infected, so they had some amount of immunity. Then they were vaccinated, again, some more had immunity. In the second wave, we had the middle age group people. Most of them were infected, and then the others were vaccinated. So, again, True. we have a big lot of people with a big amount of antibodies in their body to fight with the virus if it enters them. Now, the virus is mutating and spreading and rotating in the environment. It is going to infect the vulnerable people. The vulnerable lot now is only the children because they are unvaccinated. They have not got infected in large numbers last time. They are going out in the public. And of course, they are exposed to their parents and other members in the family. So, this is the group which is going to be in the most vulnerable lot this time when the virus is going to circulate. So, to keep our children safe, what we should do? There are a few points which I will go on saying one by one. About 11 to 12 points I have tried to enumerate, which you can tell the parents and advise them to keep their children. Keep the child indoors. Don't let them go out in the crowded places at all. Any marriages, any engagements, shadiyan hai, parties hai, birthdays hai, festivals hai, nothing for 1 year. Celebrate it in Very your true. family itself, only in your Very family. true. The second thing is educate them. See, child means 0 to 19 years. So there are different age Um, groups. Very small Ma'am, children ma'am, will. I request you हाँ to speak in Hindi because हाँ our यस यस normal हाँ सर तो हाँ मैम यस थोड़ा यस सा हिंदी में हो जाए. बहुत अच्छा रहेगा इवन आई वांट दैट एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज जनरल पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर तो जी पहली जी चीज मैम ये जी. है कि हम अपने बच्चों को अपने घर पर ही रखें अगर हम बच्चों को अपने घर पर ही रखेंगे क्राउडेड प्लेस में लोगों के बीच में भीड़ भाड़ में नहीं जाने देंगे तो उन्हें बीमारी होने की चांस लगभग नगण्य रहेंगी त्योहार हैं शादियां हैं एंगेजमेंट्स हैं पार्टीज हैं ये जीवन भर आता रहेगा परंतु ये वर्ष दोबारा नहीं आएगा ये समय दोबारा नहीं आएगा हमें अपनी जान बचानी है यदि हम खुद ही नहीं रहेंगे तो हम क्या त्योहार मनाएंगे और क्या क्या पार्टीज मनाएंगे इसलिए हम अपने बच्चों को समझाएं कोई भी त्योहार है कोई भी फैमिली में भी कोई शादियां हैं हम ना जाएं अपने घर से वर्चुअली मोबाइल पे लैपटॉप पे इस पे अपन एंटरटेन कर लें अपने आप को सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एजुकेट देम बच्चों में जिज्ञासा बहुत रहती है ना डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे रहते हैं ठीक है 0 to 2 years को बहुत नहीं समझ आ रहा है जस्ट नो मास्क लगा रहे हैं कहीं नहीं जा रहे हैं हम 2 to 5 years को थोड़ा समझ आता है किसी ने बोला वो मर गया वो मर गया वो मर गया उनको बस यही समझ आता है कि कुछ वायरस आया है बहुत जी लोग मर रहे हैं उनको इतना ही जी. समझ आता है 2 to 5 years अब जो 5 years से ऊपर आया वो कुछ सीखने को भी तैयार है उनके पास जिज्ञासा बहुत सारी है तो वी शुड एजुकेट देम माता पिता की जो भी IQ है जो भी उनका लेवल ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंगली दे शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रन उनकी भाषा में हम उन्हें समझाएं एक बीमारी आई है उससे हमें लड़ना है उससे जीतने का तरीका सिर्फ ये है कि हम घर में बैठ के आपस में खेलें जो टीनेजर्स हैं 12 13 14 15 उनको अच्छा या बुराइयां सब समझ आती हैं तो वी कैन ऑलवेज टॉक टू देम इन अ ओपन प्लेटफॉर्म लेट देम ऑल्सो वॉइस आउट उससे उनको बड़ी खुशी मिलती है कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका उनको क्या समझ है बीमारी के बारे में लेट देम से आउट एंड उसमें हम Yes. उनको एड ऑन करके उसके नॉलेज को टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ओनली वैसा ही हमें बढ़ाना है थर्ड पॉइंट डोंट लेट विजिटर्स कम टू योर प्लेस किसी को मत आने दीजिए आज हम बीमार हो गए तो परसों पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई खड़े होने को हमारे पूरे रिश्ते परिवार हम आ जाए हम नो किसी को आने की जरूरत नहीं है फोन पे बात करिए किसी को मत आने दीजिए घर में कोई भल मनसाहत मत करिए कोई फ्रेंडशिप मत रखिए कोई किटी पार्टीज मत रखिए सेकेंड वेव की शुरुआत में यह महसूस किया मैंने कि इतनी सारी लेडीज जो इन्फेक्ट होकर जिनकी लाइफ गई है कितने सारे उसमें से ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ किटी से लिया था बीमारी को अब किटी से 50 ने लिया किसी की इम्यूनिटी कम किसी की ज्यादा तो कोई बच गया और कोई चला गया तो उसके कारण बच्चों की लाइफ आप सोचो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है
नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगी कि एक हम फिक्स्ड शेड्यूल को फॉलो करें घर में, है ना? बच्चे हमारे पास हैं, पहले हमारा रोना क्या था, पेरेंट्स बोलते थे टाइम ही नहीं है, हम क्या करें? भैया मैडम आप बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ, अपन बोलो कब सिखाएं मैडम? सुबह से तो स्कूल जाते हैं, फिर उनकी ट्यूशन रहती है, फिर उनका होमवर्क रहता है, फिर वो बेचारे पढ़ते ही रहते हैं मैडम, तो उनको हम कब सिखाएं कि तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तुम्हें 2 बार ब्रश करना चाहिए, तुम्हें प्यार से बात करना चाहिए, ये डिसिप्लिन हम कब सिखाएं बच्चों को? नाउ यू हैव चिल्ड्रन विथ यू, अब आप करो, आपको जितना सिखाना है सिखाओ एंड एंजॉय देयर कंपनी। तो एक शेड्यूल बनाइए जिसमें बच्चे भी बोर ना हो। फर्स्ट वेव में तो हम समझ ही नहीं पाए कि हमें क्या करना है, हमें टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, बट नाउ वी आर मेच्योर इनफ। वेरी हम ट्रू। पेरेंट्स पेरेंट्स समझदारी और होशियारी से टाइम टेबल बना लें कि सुबह इतने बजे उठना है, फिर अपन सब पूरे पूरी फैमिली मिलके एक जगह बैठ के अपन एक्सरसाइज करें, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उसको हम आगे बाद में लेंगे। और उसके बाद हम कुछ खेलें, फिर हम बैठ के सब एक टेबल में इकट्ठे बैठ के नाश्ता करें। वैरायटी रखिए, जो बच्चों को पसंद है वैसा रखिए, उनको बोलने दीजिए जो बोलना, लेट देम स्पीक आउट। फिर उसके बाद हम कुछ एक झाड़ू पोछा लगा रहे हैं सब मिलके कर लें, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कपड़े प्रेस कर रहा है, कोई बर्तन जमा रहा है। देन उसके बाद नाश्ते के बाद फिर हम लंच पे चले जाएं, इस बीच में आप बच्चों को 1 घंटे का ब्रेक दे दो, तुम्हें टीवी में जो देखना है तुम देख लो, गिव देम दैट फ्रीडम। तो उसमें उनको लगता है कि वाह क्या वैल्यू हमारी। फिर बाकी समय आपका कहना वो मानते हैं, है ना? जब हम उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हमने लंच में अपने हिसाब से बनाया और उनको टेबल में सब फिर इकट्ठे बैठ के खाना खाओ। एंड देन ऑफ कोर्स दोपहर का जो 2 घंटा है उसमें बच्चों को सोने मत दो, क्योंकि अगर हमने सोने दिया तो अगेन रात को वो देर से सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे, दैट टाइम टेबल विल अगेन गो ऑन एज ए विशियस साइकिल। तो कीप वेरी देम ट्रू। बिजी इन द आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में आप कैसे बिजी करो? देखो, हम अगर बोलेंगे टीवी मत देखो तो वो नहीं सुनने वाले हैं। तो you let them choose a serial whatever they want to see of 1 hour or 1.5 hours। एंड दोपहर का टाइम जब हम थोड़ा सा लाउजी फील करते हैं, थोड़ी सी नींद आती है, उस समय उनको देखने दो। उसके बाद 4-5 अगेन अपन सब लोग फिर बैठ के योगा कर लें, कुछ एक्सरसाइज, कुछ गेम्स कर लें विद द फैमिली ओनली। थोड़ी देर इंडोर, थोड़ी देर अपने उसमें आंगन में या वट एवर यू हैव, छत है जो जो भी है। अगेन शाम को 7 बजे फैमिली मिलके फिर से अपन कुछ खाना बनाने लग जाओ, समथिंग इंक्लूड एवरी वन विथ यू। एंड देन रात के डिनर में अगेन हम सब मिलके करें, यानी फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल, तीनों फील्ड्स में हमें अपनी फैमिली को तैयार करना है। आपका जो भी रिलीजन है, आपके जो भी भगवान है, बच्चों को हम ये सीख दें कि सुबह नहाने के बाद आपको 5 मिनट भगवान के सामने खड़े होके हमारी फैमिली जिंदा है, हम साथ में आपस में बैठे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए हम थैंक करें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लें, सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सिखाना है कि अभी हमें सबको एक दूसरे से दूर रहना है, 6 फीट की दूरी। अब आप बच्चे को थोड़ी बोलोगे स्केल तुम लेके खड़े हो जाओ नापने के लिए। एक बहुत रफ सा उसका आइडिया क्या है, एक साइकिल जो हमारी बाइसिकल होती है, एक अपन इमेजिन करो, बच्चे को बोलो कि तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी पूरी एक बाइसिकल खड़ी होना चाहिए, उसके बाद अगला पर्सन खड़ा होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, है ना? फिर हम ट्रू। बोले उन्हें कि आप मास्क मास्क जरूर लगाओ। अब मास्क लगा के उनको आप पिक्चर दिखाइए, जो लोग मास्क यहाँ लगा के यहाँ ऊपर ले जाते हैं, गुपचुप खा रहे हैं, यहाँ लगाए यहाँ नीचे ले जाके घूम रहे हैं, उनको वो दिखाइए कि देखो, और हंसो उनके साथ, अरे देखो कैसा लगा है, देखो कैसा लगा है, कैसे लगाना चाहिए हमको। एंड देन लेट देम शो इट कि हाँ ऐसे लगाना है मम्मी, तो दे विल पुट इट प्रॉपरली। मास्क का एटिकेट्स ये है कि जो 2 साल से छोटे के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, 2 साल से छोटे के बच्चों को ओके। मास्क लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दो ऑल साल राइट। से बड़े बच्चों को हम कॉटन वाले मास्क, जो कॉटन घर में बना लेते हैं, उसमें हवा जाने का रास्ता रहता है, थोड़े से एरेशन रहते हैं। अगर आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है, देन यू गिव अ गुड मास्क टू द चाइल्ड फॉर सम टाइम, जब तक आपका कंसल्टेशन है, एंड देन घर में आके वेरी ट्रू। अगेन यू कैन गिव देम अ कॉटन मास्क। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वॉशिंग हैंड्स। तो वॉशिंग हैंड्स में हम बच्चों को सभी को 5 स्टेप्स बताते हैं, एंड द जी। बेस्ट वे इज, उसका उसका आइडियल ये है कि 15 to 20 सेकेंड्स के लिए यू शुड वॉश योर हैंड्स। तो हाउ टू काउंट, घड़ी तो लगा के हम खड़े नहीं होंगे कि 15 सेकेंड, तो यू जस्ट डू दिस, हैप्पी बर्थडे टू यू 2 times, दैट कम्स टू अबाउट अ स्पैन ऑफ 20 सेकेंड्स। आप घड़ी देख लो, अमेजिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, 20 सेकेंड्स होगा, दिस इज 20 सेकेंड्स। अमेजिंग। So, if we tell them कि अपने को ऐसा करना है, let them sing out, just 2 बार वो हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे, एंड लास्ट में अल्पना या वट एवर योर नेम इज, यू से दैट, एंड उस 20 सेकेंड्स में यू हैव टू कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज आर द 5 स्टेप्स। एंड ये 2 बार के गाने में यू कैन मेक इट अप टू 20 सेकेंड्स, तो बच्चों को मजा आएगा, एंड दे विल डू दैट एटलीस्ट 10 times a day, है ना?
नेक्स्ट थिंग वी कम यूज ऑफ सैनिटाइजर. सैनिटाइजर हमें बार बार यूज करना चाहिए. आजकल तो जी. सैनिटाइजर के नाम पे व्हाट पीपल आर प्रोड्यूसिंग आई डोंट नो. इतने केमिकल्स हैं. नाउ द चिल्ड्रन एंड पीपल आर कमिंग विद एलर्जीज. Oh yes. रैशेज आ रहे हैं. रैशेज आर कमिंग. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. अच्छे से खरीदें. 60-70% अल्कोहल होना चाहिए उसमें. एंड यू, अगर आप बाहर जा रहे हो तो यूज करो. घर में हो तो यू कैन जस्ट वॉश योर हैंड्स विद सोप. आईज, Very true. नोज एंड माउथ पे हाथ हमारा नहीं जाना है. बच्चों को हमें बार बार ये सिखाना है. अगर हमें खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो अच्छ, या तो टिश्यू पेपर लेके हम वाइप करके फेंकते हैं उसको. Next is brushing your teeth. Twice a day. We should brush our teeth twice a day. With the coming up of new infections, जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, ये जो ब्लैक फंगस आ रहा है, ये जितनी भी चीजें आती हैं, जितनी भी बीमारियां आती हैं, जहां पे भी सैनिटेशन पुअर है या हाइजीन पुअर है, वहां पे हमेशा ये वायरस जो है, बैक्टीरिया जो है, ये बीमारी पैदा Yes. करेंगे. तो ट्वाइस अ डे. अभी बच्चे भी हमारे साथ हैं, हम भी बच्चों के साथ हैं. यू हैव एम्पल ऑफ टाइम ना. हम सिखा सकते हैं. चलो अपन सब ब्रश करते हैं. एंड एक साथ पेरेंट्स भी एंड बच्चे भी सुबह भी, रात को सोने के पहले यू कैन ब्रश योर टीथ. वैक्सीनेट द पेरेंट्स. वैक्सीनेट द पेरेंट्स. पेरेंट्स का वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो नहीं लगाए हैं वो प्लीज लगाएं. क्यों? अगर हमारे बच्चे इन्फेक्ट होते हैं थर्ड वेव में, तो बच्चों के साथ हमें रहना है ना. तो हम अगर इम्यूनाइज्ड हैं या हमारे अगर अगर इम्यूनिटी अच्छी है, तो हमको इन्फेक्शन बच्चे से नहीं आएगा. एक बात. दूसरी बात, हम री इन्फेक्ट नहीं होंगे और हमसे दोबारा बच्चे को नहीं जाएगा, है ना. बच्चों की Very देखभाल true. तो हमें ही करना है. एंड बहुत कम 0.1 to 0.5% ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. बाकी ठीक हो जाते हैं, है ना. उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे. तो रूटीन वैक्सीनेशन. अब ये बात हो गई कि पेरेंट्स को वैक्सीनेट होना है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि वैक्सीनेशन ऑफ द चिल्ड्रन. कि बच्चों की जो भी एज है, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो हमने पूरे वैक्सीनेशन को पोस्टपोन कर दिया. जितने भी बच्चे पेशेंट्स चलते थे, सबको हम बोलते थे अभी 15 दिन मत आओ, अभी 1 महीने मत आओ, अभी 2 महीने मत आओ. बट देन हमारे एसोसिएशन से कहा गया कि यू कांट जस्ट स्टॉप वैक्सीनेशन लाइक दिस ना. क्योंकि जिसके भी वैक्सीनेशन हम लगा रहे हैं, फिर वो बीमारियां बढ़ जाएंगी. अब मीजल्स आउटब्रेक होता Very true. है ना. 9 महीने के Very बच्चों true. को मीजल्स नहीं लगेगा तो मीजल्स होएगा. तो जो भी उनके इन्फेक्शन है वो उनको बार बार होंगे. गुड न्यूट्रिशियस फूड का पेरेंट्स ध्यान दें बच्चों को. इसका मतलब क्या होता है? द राइट बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कैलोरीज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये चीजें हमें बैलेंस्ड अमाउंट, बैलेंस्ड रूप में देना है. तो उसके लिए फास्ट फूड बंद हो जाना चाहिए. टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट्स, कुरकुरे, चिप्स, मैगी नूडल्स, पिज्जा, ऑल दीज थिंग्स शुड बी आउट. प्लानिंग हम ऐसा करें कि 1 ग्लास दूध सुबह, 1 ग्लास दूध शाम बच्चों को रोज मिलना चाहिए. जिनको एग चलता है, दे कैन हैव एन एग एवरी डे. 2 बादाम, 1 अंजीर, कुछ अखरोट थोड़ा सा ले सकते हैं, दूध के बाद ले लें. फिर अबाउट एन आवर लेटर नाश्ता होना चाहिए, जिसमें अनाज होना चाहिए, है ना. इडली है, डोसा है, चीला है, उपमा है, पोहा है, समथिंग ऑफ दिस टाइप, जिसमें अनाज है. उस अनाज का बना हुआ खाना नाश्ते में सबको मिलना चाहिए. उसके साथ थोड़ा सा फ्रूट. इफ दे वांट अ ड्रिंक, Very true. दे कैन टेक. फिर अब हम आ गए बच्चों को, खेल रहे हैं बच्चे, दे कैन एंजॉय देमसेल्व्स. अब हम आए खाने पे. तो जो सुबह एंड शाम का नाश्ता होना चाहिए, जैसे हम चाय पीते हैं तो बच्चे दूध पियेंगे, हम नाश्ता करते हैं तो बच्चे नाश्ता करेंगे, जिसमें अनाज होना अनिवार्य है. एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रूट. फ्रूट कौन सा? सीजनल. सीजनल फ्रूट्स, है ना. अलग से जाके हमें 300 किलो के एप्पल लाने का जरूरत नहीं है. 300 रुपए किलो का एप्पल नहीं खरीदना है. जो सीजनल फ्रेश फ्रूट है, हमें वो खरीदना है और वो खाना है. उसके सिवाय में फिर दोनों समय का जो खाना है, दोपहर एंड रात, दाल चावल रोटी सब्जी. हमारा जो इंडियन फूड है, इट इज सच अ गुड बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. हमें वजन कम करना, तो हमने चावल बंद कर दिया. दैट इज नॉट द वे ना. कुछ स्पेशल इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो दाल में नहीं है, चावल में है. आपने अगर चावल आउट कर दिया तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी ना. इसलिए आप कंप्लीट खाना लें. उस कैलोरीज को बर्न आउट करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे. दैट इज द वे टू लूज वेट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लीन हाउस एंड होम्स के सर्फेसेस. यानी हम बच्चों को जब हाउस होल्ड कोर्स में यूज करते हैं, तो उनको हम सफाई कराएंगे सब जगह की, टेबल की, कुर्सी की, स्विच बोर्ड्स की, दरवाजों की. तो उससे अगर किसी ने हाथ छुआ भी है तो वो जगह फिर से डिसइंफेक्ट हो गया. एंड ऑफ कोर्स द मेंटल हेल्थ हमको बच्चों की देखना है. दैट इज अनदर पॉइंट, डिटेल में अपन Yes. बाद में लेंगे. रेगुलर एक्सरसाइज, जिसमें योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड रीडिंग एंड लर्निंग टू कीप एजुकेशन एट पार। बच्चों का एजुकेशन बहुत पिछड़ गया है इस एक साल में। ऑनलाइन क्लासेस से टीचर्स ने, स्कूल्स ने बहुत कोशिश की है कि बच्चों को वो साथ में चलाएं, फिर भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, आप प्लान आउट करिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बच्चे के साथ बैठिए, आपका जो भी सब्जेक्ट चॉइस का है आप वो बच्चे के साथ करिए। Very true. This has been so informative. I have a 10-year-old son, and this is very informative for me as well. Uh, Ma'am, I want to ask you, in case a mother is affected by the virus and has a yes, breastfeeding infant, okay, what yes, precautions must she take? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस कम से कम मेरे ख्याल से 100 फोन्स तो मैंने इस बात के लिए जवाब दिया है जो आपने क्वेश्चन किया है। तो मदर अगर ब्रेस्ट फीड कराने वाली मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तो पहली चीज तो शी कैन वैक्सीनेट हर सेल्फ ऑल्सो, है ना। अब अगर ये इनको इन्फेक्शन हो गया है, सपोज शी इज कोविड पॉजिटिव, नाउ शी कैन ब्रेस्ट फीड हर बेबी, उसमें कोई मनाही नहीं है, एंड शी शुड ब्रेस्ट फीड हर बेबी, बट डबल मास्किंग करना है ना। डबल Okay. मास्क लगाएंगी जब भी बच्चों को हम ब्रेस्ट फीड कराएंगे। बच्चे को गोदी लेने के पहले हाथ साबुन से अच्छे से धोना है, और बच्चे को पूरा पिला के देन व्हेन यू लीव द बेबी अगेन यू कैन वॉश योर हैंड्स और यूज सैनिटाइजर ऑफ एंड ऑन। बच्चे को आप क्लीन करिए, आप बच्चे की पूरी देखभाल करिए, नो इश्यूज, जस्ट डबल मास्क लगा के रखिए और बार बार हाथ को अपने धोते जाइए। Okay. Uh, Ma'am, in case a child is affected, okay, what precautions must be taken to prevent the infection from turning fatal? And at the same time, ma'am, what are the symptoms of COVID-19 in children? Because parents do not recognize the symptoms of COVID-19 and it ends up राइट, turning fatal. So, यस ma'am, यस, what वेरी is गुड, it? यस यस। तो सपोज अ चाइल्ड इज इन्फेक्टेड, एक बच्चा पॉजिटिव हो गया है ना, तो पहली चीज हमें ये करना है कि आपके जो भी कंसर्न डॉक्टर हैं, अभी आजकल तो सब टेलीफोनिकली काम हो रहे हैं, वर्चुअली हो रहे हैं, एंड ऑल ऑफ जी अस आर जी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर पेरेंट्स, पेशेंट्स कोई भी हो। तो आप सबसे पहले बात कर लीजिए, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर बच्चा पॉजिटिव हो गया, इट इज नॉट अ वेरी बिग इशू। सबसे पहले तो ओके आप डरिए मत, सबसे पहले पेरेंट्स आप लोग डरिए मत। जैसे हमें कॉमन कोल्ड, फीवर, फ्लू होता था, वैसा ही ये भी एक वायरस है, इट इज सेम, है ना। हमें बुराई की तरफ नहीं जाना है, बढ़ने नहीं देना है। उसके लिए हम क्या करते हैं वायरल इन्फेक्शन में, घर में रहिए, बच्चे को गर्म रखिए, बच्चे को खाना अच्छा दीजिए, न्यूट्रिशन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चे का टेम्परेचर नापते जाइए, टेम्परेचर 2 आवरली लेते जाइए और एक पेपर में लिखते जाइए टू बी मोर सिस्टमेटिक। व्हेनेवर द टेम्परेचर गोज अबव 99 के ऊपर चला गया, एक पैरासिटामॉल दे दीजिए, आपके डॉक्टर आपको वेट के हिसाब से एडवाइस करेंगे कितना देना है, तो आप बच्चे को पैरासिटामॉल दे दीजिए। साफ सफाई रखिए, रोज नहलाइए, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करिए, बड़ा बच्चा है तो आप SpO2 मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। रेगुलर बेथिंग एंड गुड न्यूट्रिशियस फूड विथ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स बहुत दीजिए। अब बच्चे को बीमारी हो गई है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो डिहाइड्रेशन होता ही है, क्यों, क्योंकि बच्चे का इनटेक भी कम हो जाता है ना, ऑटोमेटिक इनटेक कम होता है। एक बार 100 डिग्री बुखार आया तो बुखार आने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाता वो, और बुखार आने के बाद 4 घंटे कुछ नहीं खाता। अब सपोज पैरासिटामॉल से उल्टी हो गई तो 3 घंटे और चले गए। तो इस तरह से बच्चे के हाइड्रेशन पे हमें बहुत ध्यान देना है। तो हम क्या दे सकते हैं, एक तो हम दूध दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, गर्मी का समय आ रहा है हम मठा दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, कस्टर्ड बना के दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। बच्चे के टेस्ट के हिसाब से आप चीजें बदलिए। अनाज, मिल्क एंड शुगर इन वो बहुत न्यूट्रिशियस है बच्चे के लिए। अगर वो 4 चम्मच भी खा लेता है तो आप समझिए कि उसको इतना न्यूट्रिशन तो चला गया, तो बच्चे को भर्ती करने की नौबत नहीं आएगी, है ना। तो उसके हाइजीन पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग, SpO2 एंड पैरासिटामॉल जब जरूरत हो। अब इसमें क्या होता है कि हम, हाँ, और जो भी बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग रेगुलर करना चाहिए। अब जो इसमें एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं, इनको तो इतना ही होने वाला है, एंड मोर देन 80% ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ऑल राइट विद दिस ओनली। 5 to 7 डेज में वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे और हमें डरने की जरूरत नहीं। अब इनमें क्या कंप्लेंट्स आती हैं, सपोज ये माइल्ड सिम्टम्स वाले आए, सर्दी, खांसी, जी नाक बहना, किसी किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है। स्पेशली जो हमने एडोलेसेंट्स देखे इस बार ना, 5-7 साल से लेके 12-15-16 साल तक के बच्चे बहुत इन्फेक्ट हुए इस बार। वो सब में सीवियर हेडेक, बॉडी एक एंड फटीग,
फीवर भी नहीं आता था बहुत से बच्चों को तो, पर उनको थकान बहुत लगती थी, कमजोरी लगती रहती थी एंड सिवियर बॉडी एक होता रहता था। एंड टेस्ट कराओ तो पॉजिटिव निकलते थे। बहुत बार तो ये भी हुआ कि फर्स्ट वेव में क्या था, पेरेंट्स पॉजिटिव है, एल्डरली पॉजिटिव है, तो हम घर के लोगों को स्क्रीन करते थे। इस बार तो बहुत से बच्चों में हमने ये देखा कि बच्चे को देख के हमने शंका के आधार पर टेस्ट कराया, और क्योंकि वो पॉजिटिव निकला तो पेरेंट्स को टेस्ट कराया, एंड द पेरेंट्स ऑल्सो केम आउट टू बी पॉजिटिव। ओह, ऐसा होता है। तो अब सपोज प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो हमें बच्चे माँ बाप को ध्यान क्या देना है, बच्चे की रेस्पिरेशन पे ध्यान दो आप। बहुत बार SpO2 बच्चों का नहीं लेते होता है, पेरेंट्स भी नहीं ले पाते हैं, तो सांस देखिए, सांस की गति देखिए। अगर हम बच्चे के कपड़े थोड़े से खोल देंगे और एक घड़ी से देखेंगे, तो जो 2 महीने से कम का बच्चा है, 2 महीने से कम वाले बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट अप टू 60 हो सकती है, 60 तक हो सकती है ना। 2 to 5 years है, 2 months to 1 year है, तो उसकी 50 तक हो सकती है। 1 साल से ज्यादा का है तो उसके 40 तक, 40 तक हो सकती है। और 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी 30 तक हो सकती है। अगर 5-6 साल का बच्चा है और उसकी रेस्पिरेटरी रेट हमें 40 दिख रही है, SpO2 भले ही 98 आ रहा है, अदरवाइज द चाइल्ड इज फाइन, बट इफ द ब्रीदिंग हम देख रहे हैं कि इट इज 40 या 42 या 45, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, है ना। क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है और यही चीजें बढ़ के फिर निमोनिया का रूप ले लेती हैं। अगर यही चीज बढ़ेगी और सपोज 5th डे के बाद भी हाई ग्रेड फीवर है, देन यू शुड थिंक कि कहीं ये इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रहा है, देन यू टॉक टू योर डॉक्टर। अगर 5th या 6th डे के बाद भी हाई ग्रेड फीवर है, देन वी शुड गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे, उसमें हम सोचेंगे कि हमें और कुछ देना करना चाहिए क्या। देन इफ द चाइल्ड गोज ऑन टू मॉडरेट, मॉडरेट में चला गया, यानी उसका जो SpO2 सैचुरेशन है वो 90 के नीचे आ गया, तब उसको हम जी, मॉडरेट ग्रेड मानने लग जाते हैं। फिर अगर जरूरत होगी तो एडमिट होएगा, अदरवाइज घर पे भी रह के टाइमली मेडिकेशन देने से ये बच्चे अच्छे हो जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना ओके, है हमें इसमें कि अगर जी, हमारे बच्चे कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, जैसा कि आपको याद होगा फर्स्ट वेव में कहा गया, एल्डरली, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक केसेस, COPD, जिनको लंग के इन्फेक्शन बार बार होते हैं, ये लोग एक रिस्क ग्रुप है। वही चीज बच्चों में भी है ना। अगर बच्चों को लंग डिजीजेस बार बार होती है, अस्थमा बार बार होता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बार बार होता है, अगर उनको कोई हार्ट डिजीज है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या उनको कोई ऑर्गन डिस्फंक्शन है, कोई रीनल प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओबेसिटी, मोटापा, यस, जो एक सामान्य बच्चे को बहुत मिल रहा है, ये चीजें अगर हमारे बच्चे को हैं तो वो एक एक्स्ट्रा रिस्क में है इस बीमारी के लिए, ये ओके, ध्यान देना। ऑल राइट। Ma'am, another thing I want to ask you is, in case a child is to be immunized by a time-bound vaccination, like the triple vaccination or something similar, and has been यस, infected by COVID-19, after how many weeks can the regular immunization be done? कितने हफ्तों के बाद हम यस, रेगुलर इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं ऐसे बच्चे को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ही सब करंट सिनेरियो के क्वेश्चन आपने अच्छे लिए हैं। कि वैक्सीनेशन बच्चों के वैसे ही बहुत डिले हो चुके हैं, जो भी बच्चे जी, पैदा हुए हैं इस वर्ष में उनके सबके वैक्सीनेशन बहुत डिले हो गए हैं। इफ द चाइल्ड इज फाइन, एज आई सेड प्रीवियसली, रूटीन टाइम पे आप वैक्सीनेशन करवाते रहिए। डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स में टाइम अरेंज करते हैं, प्लेस अरेंज करते हैं कि उस बच्चे को एक बिल्कुल साफ सुथरी जगह में बिठा के उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए। अब सपोज द चाइल्ड हैज कोविड पॉजिटिव, हैज बिकम कोविड पॉजिटिव, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स आप रिकवरी के बाद रुक जाइए, देन ओनली यू गो फॉर योर वैक्सीनेशन। प्रीवियसली ओके, वी वर सेइंग कि आप 8 वीक्स के बाद करा सकते हैं, बट अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेयर का नया शेड्यूल आया है, जिसमें दे आर सेइंग अगर कोविड पॉजिटिव आप हुए हो तो यू वेट फॉर ओके, एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स फॉर योर ओके, नेक्स्ट शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन। okay. All right, ma'am. All right. Ma'am, some parents have no issues getting vaccinated as adults, but they are fretting over कि कल को बच्चों की वैक्सीनेशन आएगी जब, तो क्या उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाना है नहीं करवाना है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल है. So, what message as a pediatrician do you have for such parents? यस यस यस, सी वैक्सीनेशन, व्हाट इज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बल पे हमने अपने देश से स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इनको इरेडिकेट किया है, कैन यू इमेजिन, इरेडिकेट किया है Yes, ना। एंड विद yes, द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन, जो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस के जो इन्फेक्शन होते थे, निमोनियाज होते थे, वो जी, इतने जी, बच्चे मरते थे, मोर्टेलिटी इतनी हाई थी, चूंकि yes, उसको गवर्नमेंट शेड्यूल में ला लिया गया तो उसकी मोर्टेलिटी एकदम कम हो गई है। हमको मतलब वो केसेस मिलते ही नहीं है कि इन्फेंट्स निमोनिया में आ रहे हो, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाले, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। अगेन निमोनिया के वैक्सीनेशन आए, अभी उसके बिल्कुल कम बच्चे आने लग गए। तो वैक्सीनेशन इज अ वेरी प्रोटेक्टिव थिंग, उसको तो हमें कभी दो शब्द दो सोचना ही नहीं चाहिए।
व्हाट आर वी डूइंग वैक्सीनेशन में? हम उसी वायरस को या बैक्टीरिया को लाइव फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या डेड फॉर्म में हम अपने शरीर में डाल रहे हैं इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स. द अमाउंट इज वेरी सच दैट इट विल नॉट कॉज डिजीज, उससे बीमारी नहीं होगी, परंतु वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा कि आप एंटीबॉडीज बनाओ. तो एंटीबॉडीज बनेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, जिससे कि जब वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे को बीमारी करेगा तो ये एंटीबॉडीज जाके उससे लड़ेंगे और बीमारी को हमें नहीं होने देंगे. दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. तो इसमें वैक्सीनेशन के बारे में सोच तो होना ही नहीं चाहिए. जैसे कि अगर हम वैक्सीनेट नहीं हुए तो क्या हमारे को बीमारी नहीं होएगी? होएगी जी, ना. हम तो बीमारी के बीच में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। हम तो बीमारी होएगी हमें वो. परंतु यदि हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो 70% चांस है, 70 to 80% की हमें डिजीज नहीं होगी. सपोज हो भी गई, हम अगर पॉजिटिव भी हो गए तो वी विल नॉट लैंड अप टू दैट सिवियर कैटेगरी जहां पे वेंटिलेशन लग रहा है, जहां वेंटिलेटर लग रहा है, जहां पे ऑक्सीजनेशन करना पड़ रहा है. हम वहां नहीं पहुंचेंगे. हम थोड़ी सी मेडिकेशन, थोड़ी सी सावधानियों से हम अपने आप को ठीक कर लेंगे. तो वैक्सीनेशन के साथ तो बिल्कुल डिलेमा में मत रहे कोई. 100% वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम, ब्लैक फंगस इज समथिंग यस. जिससे जो बहुत चर्चा का विषय है अभी, ब्लैक फंगस, और यस. उसको लेकर बहुत लोग चिंतित हैं. हाउ कैन चिल्ड्रन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्लैक फंगस? सी, ब्लैक फंगस इज व्हाट? इट इज एक्चुअली म्यूकोरेल्स, एक फंगस है. फंगस फैमिली है, जी, म्यूकोरेल्स है ना. अब उसमें से ये जी, म्यूकोरमाइसिटीज जो है, ये वाले फंगस जो है ये इस बीमारी को कर रहे हैं. सामान्य जी, तौर पे भी ये बीमारी होती थी. कुछ स्टडीज हमने जी, देखी 2004 to 14, लगभग 10 इयर्स की स्टडी यूएस वगैरह में जो हुई है उसको कोट किया गया है. जी, एंड दे हैव सेड कि ये बीमारियां तो हमेशा से हैं. अभी भी यस, हम हर साल इस बीमारी को इस मौसम में देखते हैं. 10 से 15 पेशेंट निश्चित तौर पे इसके आते हैं. द थिंग इज विथ कोविड इन द सीन, ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेवेटिंग फॉर्म में हो गया है ना. तो ये फंगस कब ज्यादा होता है? कि जब सैनिटेशन पुअर हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, या इम्यूनिटी कम हो. ये तीन चीजें कभी भी अगर हमारे शरीर में है तो हमें जो वातावरण में फंगस है वो हमें बीमारी कर सकता है ना. तो वेरी अब ये ट्रू. क्योंकि कोविड से अभी देखिए किसको ज्यादा हो रहा है, ये जो डायबिटिक्स है, जी, जो वेंटिलेशन पे रहे हैं, जिनको बहुत दिन ऑक्सीजनेशन देना पड़ा है, जिनको लंबे पे स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, जो किसी भी तरीके से इम्यूनोसप्रेस्ड है ना. तो अगेन द सेम फैक्टर्स, किसी भी तरीके से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई तो उसने आके हमारे अंदर बीमारी को रूप दे दिया. जो वेंटिलेशन ऑक्सीजनेशन के लिए ये भी कहा गया कि जो ऑक्सीजन चलती रहती है वो बहुत देर तक चलती रहती है, उसी उसी पानी में घूमती रहती है, उससे भी फंगस को बढ़ने को मौका मिलता है. वेरी ट्रू. सिमिलरली, अब ये फंगस वातावरण में है तो बच्चों को भी हो जी, सकती है ना. वी कैन नॉट से कि बच्चों को नहीं होगी, बच्चों को भी हो सकती है. तो उसके लिए जो हम अभी सैनिटेशन समझा रहे हैं ना, हाइजीन एंड सैनिटेशन, जी, इफ दिस इज प्रैक्टिस्ड इन एवरी होम बाय ऑल पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन, 2 बार दांत ब्रश करो, बार बार हाथ धो, हर खाना खाने के बाद कुल्ला करो, रिंस योर माउथ. बच्चे क्या करते हैं? हाथ धोया, निकल गए. नहीं, उनको अपन को सिखाना है पानी को अंदर लेके रिंस मुंह करना है. रिंस करना है. अगर आप 2 सेकंड 5 सेकंड में रिंस करते हैं तो आपके जो जर्म्स है खाने की वजह से, जो फूड पार्टिकल्स रह गए, जी, वो बाहर निकल जाएगा. तो वहां इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं बचेगा, नहीं तो इन्फेक्शन का वेरी चांस ट्रू. बचेगा. अब ये जो वेरी ट्रू. म्यूकोरमाइसिटीज हैं, ये वाले फंगस जो इन्फेक्शन कर रहे हैं, वो सबसे पहले हमें कहाँ दिख रहा है? पैलेट में दिख रहा है. तालू, हमारे तालू में ब्लैक रंग का दिखने लग जाता है जमा हुआ, या तो इनर साइड ऑफ चीक, दोनों साइड ओके. चीक्स के अंदर, टीथ के पास ब्लैक जमा हुआ दिखने लग जाता है, या तो स्किन पे ओके. दिखने लग जाता है. और क्या होता है? हाँ. सिवियर पेन इन द फेस. एक ओके. साइड में बहुत सिवियर पेन, एक साइड में रेडनेस हो गई, आईज में स्वेलिंग आ गई, विजन कम हो गया, ये चीजें होने लग जाती हैं. और अगर ये ब्रेन में गया तो कंफ्यूजन, डिलीरियम, ये होने लग जाता है. तो इस फंगस का स्वभाव ये है कि सबसे पहले ये साइनसेस को इन्फेक्ट करता है. ओके. तो जब बार बार स्टीम के लिए कहा गया, इन्फेक्शन आपको हो रहा है, स्टीम लो, सादे गर्म पानी की भाप लो, तो इससे ये वायरस भी मरते हैं और ये जो फंगस है इनको भी प्रोपोगेट होने का, बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा. ठीक है. तो ये स्टीम वगैरह भी इसमें फायदा करेगा. तो यहाँ पे अंदर दिखता है, दांत में अक्यूट पेन होने लग जाएगा या स्वेलिंग होने लग जाएगी. इसमें ये देखा गया है कि इससे भी हम डरे मत.
अब देखिए बीमारी आई है तो किसी को भी हो सकती है, उसमें हम डर के क्या कर लेंगे? यू हैव टू लर्न हाउ टू फेस इट. Suppose we are infected with the virus. The most important thing is early diagnosis. Yes. बार बार हम सब जगह ऐसे सेशंस करके लोगों को समझा रहे हैं कि आपको कोविड अगर हो चुका है तो, अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो भी आपको फंगस से इन्फेक्शन हो सकता है, पर वही फंगस मेरे शरीर में अलग तरीके से काम करेगा, आपके शरीर में अलग तरीके से, एक डायबिटिक के शरीर में अलग तरीके से. बात सिंपल इतनी ही है ना? तो वो क्या करेगा कि अगर इन्फेक्शन आ गया है तो हमें सबसे पहले इन सिम्पटम्स में से कुछ भी दिख रहा है, आप तुरंत कंसल्ट करिए डॉक्टर को. अगर हमने डायग्नोसिस तभी कर लिया जब तालू पे आया है या दांत ये गाल के अंदर आया है और हमने पकड़ लिया, तो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट है सर्जरी. डेब्रेडमेंट. डेब्रेडमेंट यानी क्या करते हैं, उसको खरोच के निकाल देते हैं, जितना नेक्रोटिक टिश्यू है उसको हटा दिया जाता है. अब जैसे ही नेक्रोटिक टिश्यू हट गया तो आपका सोर्स तो खत्म हो गया, है ना? अब क्या करना है हमें कि आगे बीमारी ना हो या जो थोड़ा बहुत फंगस रह गया है वो इन्फेक्शन बढ़ाए ना. अगर इन्फेक्शन बढ़ाए तो वो क्या करेगा, इन साइनसेस के बाद वो यहाँ पेनिट्रेट करते हुए ऑर्बिट्स में जाएगा, आंखों के पीछे से धक्का देगा, आंखों को भी प्रोट्रूजन कराएगा और फिर वो ब्रेन में चला जाएगा. इस फंगस की तासीर है कि ये ब्लड वेसल्स को जाता है, इन्वेड करता है ब्लड वेसल्स को, फिर थ्रोम्बोसिस होता है और फिर नेक्रोसिस होता है ना? ये तो लास्ट थिंग है. ट्रीटमेंट भी अच्छा है अगर आपने सर्जरी करा ली. उसके बाद हमने एंटी फंगस दे दिए, उसकी भी मेडिकेशंस हैं, आईवी मेडिकेशंस दिए जाते हैं, एम्फोटेरिसिन देते हैं, फिर पोसाकोनाजोल देते हैं, उसके शेड्यूल्स हैं, वो सब दिए जाते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है. वी शुड नॉट बी वेरी नेगेटिव अबाउट इट. पहली चीज Yes, हम प्रिवेंशन that is करें, important. बीमारी को ना आने दें. बच्चों में भी उनको ज्यादा खतरा है जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं. जो Okay. बच्चे ट्यूमर्स वाले हैं, कोई से ल्यूकीमियाज वाले हैं, कोई मैलिग्नेंसी वाले हैं, तो उनको ज्यादा चांस है कि ये फंगस फ्लेयर अप होके इन्फेक्शन कर सकता है. तो उनके लिए उनका वातावरण हम स्वच्छ रखें, उनको इन्फेक्शन से बचाएं. This is so well put out that now people will not be scared. The fear factor in the minds of Yes, people and yes. children has played a very important role in spreading fear during the pandemic. Ma'am, जब वैक्सीनेशन लगेगा तो साइड इफेक्ट होंगे, और खास करके बच्चों में कौन से एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स है आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड फ्रॉम Yes. कोविड-19? जी, जी। एज़ विथ ऑल वैक्सिनेशंस जो हम डीपीटी वगैरह लगाते हैं बच्चों को या हम मीज़ल्स लगाते हैं, तो बहुत से वैक्सीन्स में फ़ीवर नहीं आता, फिर भी उन बच्चों को आ जाता है। तो लाइक दैट, लाइकवाइज़ इस टीके के बाद भी बच्चों को हल्का-फुल्का फ़ीवर आ सकता है, तेज़ भी आ सकता है, 101, 102, 103 भी आ सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 टू 3 डेज़ टू 4 डेज़, तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीवर आ रहा है, आने दीजिए, हम पैरासिटामॉल लेंगे, हाइड्रेशन अच्छा बना के रखेंगे, लिक्विड्स बहुत दीजिए और रेस्ट करने दीजिए बच्चे को। 3 to 5 days में एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. फीवर इज वेरी कॉमन. शोल्डर पेन जहां पे टीका लगता है यूजुअली उस शोल्डर में पेन होता रहता है. बॉडी एक हो सकता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक हो जाएगा वो, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? Okay. Ma'am, this question is come from parents. Children are missing out on school and this is impacting their mental health. यस. The fear and stress is getting onto them. Ma'am, any guidance for this to maintain proper mental health? Because children are missing out playing with friends, going out, the fear of death in general. So, यस, ma'am, यस, यस. anything that you would suggest? हाँ, हाँ, यस, यस. इसके लिए जो अपन ने पहले बात की थी ना शुरू में कि हमें एक शेड्यूल जी, ऑर्गेनाइज करना है घर में. सबसे पहले तो पेरेंट्स इस पैनिक से हट जाएं कि अब बच्चे हमारे पास हैं तो उनका पढ़ाई भी जा रहा है. अरे 1 साल तो जीवन में कहीं भी काउंट नहीं होने वाला है. हेल्थ इज मोर very true. इम्पोर्टेंट. तो बी हैप्पी विथ योर चिल्ड्रन. पहली चीज हम उसको एक स्ट्रेस ना लें कि अरे बाप रे अब दिन भर ये बिस्तर मत उठाओ, ये कपड़ा नहीं उठाया तुमने, ये नहीं किया. वी कीप ऑन नैगिंग टू द चिल्ड्रन क्योंकि वो पूरे समय दिख रहे हैं हमको. तो सबसे पहले हम उसको चेंज करें. पॉजिटिव जी, एटीट्यूड फ्रॉम पेरेंट्स एंड टू द चिल्ड्रन, ये जरूरी है. हम बच्चों को पूरे समय पॉजिटिव फीडिंग करें. अरे बेटा ये कपड़ा घर ही कर दे, अरे अपने कपड़े जमा दे, मुझे हेल्प हो जाएगी. द मोमेंट यू से कपड़े नहीं उठाया, बिस्तर नहीं उठाया, तो नेचुरली उनको पूरे दिन वही 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 वो चिढ़ जाते हैं बच्चे. एंड 2-3 घंटे में तो आपके हाथ से निकल ही जाते हैं. तो हम सबसे पहले हम अपनी साइकी तैयार करें कि बच्चों को हम शेड्यूल में बांटें, शेड्यूल में अपने साथ इन्वॉल्व करें. जाओ छत में एक्सरसाइज करके आना, जाओ दौड़ के आना. दे आर नॉट गोइंग टू डू इट. they're not हमको gonna खुद do it.
हमें खुद करना है तब वो करेंगे, वो जो खा रहे हैं हमें भी वही खाना है तब वो खाएंगे। उसके बाद उनको जो घर के बिस्तर उठा रहे हैं, अपना बिस्तर तुम उठाओ, हम अपना उठा रहे हैं, सबसे अपने अपने बिस्तर उठवाइए, झाड़ू लगवा लीजिए, कपड़े बिस्तर बर्तन जमवा लीजिए। इस तरीके से हाउस होल्ड कोर्स में बच्चों को यूटिलाइज करिए, वो थकेंगे, उनकी एनर्जी जाएगी और वो टेक्नोलॉजी से दूर होंगे, मोबाइल्स एंड टीवी को कम चलाएंगे, एंड दे विल एंजॉय दिस वर्क, जो उनको आगे भी काम आएगा, है ना। सेकेंड थिंग, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, लड़कियां, उनको कुकिंग में कुछ ना कुछ तो मजा आएगा, कुछ ना कुछ तो उनको बनाने का मन करता है, उनको जो शौक है वो उनको थोड़ा बहुत किचन में इन्वॉल्व होने दीजिए। तीसरी चीज, कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन है, अरे बेटा मशीन ऑन कर दे, अरे बेटा कपड़े डाल दे, सब हमको प्यार से बोलते हुए, चालाकी से, पेरेंट्स हैव टू बी वेरी चालाक, उनको चालाकी से बच्चों से काम निकालना होता है कि उनको अपनी तरफ अपनी टीम में मिला लो और उनसे काम करवा लो, तो उसमें वो भी खुश रहते हैं और हम भी। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें क्या करना है कि पॉजिटिव, बच्चों को पूरे समय पॉजिटिव एनर्जी देते जाइए, पॉजिटिव बातें बताते जाइए, एंड लाफ अलाउड विद देम, कुछ भी अंट शंट स्टूपिड से मजाक में हंसिए जोर से। अपन अपने स्कूल डेज की बात करें, मालूम एक बार क्या हुआ, हम इस क्लास में थे तो हमारे साथ एक टीचर ने ऐसा किया, फिर उस बच्चे ने ऐसा किया, एनी स्टूपिड स्टोरी। तो हम जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं ना, तो बच्चे अपनी स्टोरी सुनाते हैं, फिर वो अपनी जो स्टोरी सुनाते जाते हैं, तो हमें उनकी स्कूल की बारीकियां भी पता चलती हैं, उनके पीयर ग्रुप का, उनके फ्रेंड सर्कल की साइकोलॉजी पता चलती है, और फिर वो इतनी स्टूपिड बातें अपने को बताते हैं कि अपने को लगता है कि अरे हमें तो उसके बारे में ये मालूम ही नहीं था, है ना। फिर हम अपने कुछ फैमिली के बारे में बताएं, हम अपनी फैमिली के बारे में कुछ एक सेंटेंस बोलेंगे ना, तो उन लोग अपनी चीजें डालते हैं, तो उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए बस, एंड द मोमेंट यू पुट दैट स्टार्टिंग पॉइंट, दे कम आउट विथ सो मेनी ऑफ देयर स्टोरीज, कि उसमें फिर हंसेंगे अपन, उनको कुछ समझाने का मौका भी मिल जाता है, हाँ यार ऐसे समय में अपने को ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो उनको एक हम साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट होना भी सिखा रहे हैं। तो वन थिंग इज कि उनको ऑर्गेनाइज बनाइए, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड दीजिए, उनको एक टाइम शेड्यूल में लगाइए, जैसे कि प्लांट्स हैं, अपन ने मालूम है अभी तो लॉकडाउन चलने वाला है 4-6 महीना, अपन चलो आज एक पौधा लगाते हैं, एक पर्टिकुलर डे पे पौधा लगवा दिया, रोज पानी लगवाओ डलवाओ, महीने 2 महीने में अपने को ऊपर आता दिखेगा वो, तो वो जो कंस्ट्रक्टिव जो दिखता है ना पॉजिटिव एनर्जी, वो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को अपन, छोटे बच्चों को, लड़कियों को सुई धागा चलाना सिखाओ, बटन लगाना सिखाइए, आजकल तो बच्चों को बटन एंड हुक नहीं आता, तो लड़कियों को यूज करिए, उनको बटन टाँकना सिखा दो, हुक लगाना सिखा दो, लड़कों को चाय बनाना सिखा दो, है ना। तो इस टाइप की चीजों में हम बच्चों को बिजी कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं, और क्योंकि वो बिजी रहेंगे ना, तो वो परेशान नहीं होंगे, अपने आप को अकेला महसूस नहीं वेरी करेंगे। उनकी जो वेरी हॉबीज हैं, हॉबीज हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, म्यूजिक तो इतनी अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊं, म्यूजिक में इन्वॉल्व कर दो जिसको जरा भी शौक है, इतना पॉजिटिव एनर्जी है उसमें, इतना अच्छा लगता है कि सब निगेटिविटी खत्म हो जाती है ना। स्टोरी सुनाइए, उनसे सुनिए, डिसिप्लिन में रखिए उनको, सूर्य नमस्कार जरूर कराइए, सूर्य नमस्कार में पूरे वो सारे पोजेज हैं जो हमको स्ट्रेचिंग भी देते हैं, हमको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, इससे उनकी एंग्जाइटी भी कम हो जाएगी, ओबेसिटी कम करना है बच्चों की, कुछ इंडोर गेम्स का हम प्लान आउट कर लें, कभी हम वो क्या होता है, वो कौन सा गेम है जिसमें वर्ड्स बनाते, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल स्क्रैबल, बना यस। खेलिए, स्क्रैबल खेलिए, तो उससे बच्चों का वो भी बढ़ेगा, इंग्लिश उनका लैंग्वेज बढ़ेगा, वोकैबुलरी बढ़ जाएगी उनकी, एंड देन उसके बाद एक स्टूपिड सा गेम खेल लो, लूडो खेल लो अपन, कार्ड्स खेल, मींस कीप देम इन्वॉल्व। आपको रोज का एक शेड्यूल बनाना चाहिए बच्चों के लिए, है ना। और छोटे बच्चों के लिए भी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था बेचारे 5 से 8 साल के बच्चों का, कि फ्रेंड्स के साथ कैसे मिलना, कभी लड़ना, कभी झगड़ना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी एक दूसरे को मनाना, ये सब चीजें होने वाली थी बेचारों के साथ, वो नहीं हो पा रही हैं, तो बच्चों को आपस में लड़ने झगड़ने दो घर में, एंड देन लेट देम लव ईच अदर आल्सो, है ना। और बताइए, मैम, थैंक यू टाइम सो खत्म। मच। नॉट रियली, बातें खत्म नहीं हुई, जबकि टाइम का, हमने कह रहे टाइम खत्म हुआ है, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी आपसे, तो वी विल बी बैक अगेन विथ अनदर एपिसोड विथ यू, so ऑफ that कोर्स, मोस्ट people get वेलकम। to learn about what is to be done with children during pandemics, after it, along with it, before it, everything. So, ma'am, thank you so much for joining in with us today, taking out time थैंक from your very busy schedule, थैंक यू explaining it मैम, so beautifully, giving out so much positivity, love, and affection through your थैंक यू सो session. मच, Thank you so much, ma'am. We are indeed very grateful to you. With this, थैंक यू, I come to an end of today's episode of Doctor's Desk with Dr. Alpana. I will be back again with Dr. Alpana Shukla ji very soon. And we will definitely do another session with ma'am. With this, I come to an end of today's episode. I will be back again.
tomorrow at 11:30 a.m., where I will be debating on the gaps of rural and urban education with my panel. With this, we come to an end. Good evening. Namaskar. Jai Hind. Namaskar. Namaskar.